which is inside our body, which has been sent with us by this nature. नेचर में हमारे साथ एक खुश रहने का गुण भेजा है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम खुश कैसे रहें. हम खुश तभी रह पाएंगे अगर हम खुश रहना चाहते हैं. हम खुश तभी रह पाएंगे अगर हम खुश रहना चाहते हैं. Some of the people are there who are having negative mental attitude. Some of the people are there who are always having negative mental attitude. Means system of people are there who are never satisfied with any of the thing. Who are never satisfied with any of the thing. What are they doing? If they are getting any job, then they are saying. When they are not getting any job, then they are praying to God. I must get a job. I must get a job. I must get a job. When they are getting the job, और जब उनकी जॉब लगी तो वो 2-4 महीने बाद उस जॉब से satisfied नहीं होते. Then they are thinking नहीं यार this is very bad, this is bad. If they are thinking from the point of view of that they want to get more, they want to get more, that they want to get more, that is a different thing. But on the other hand, some persons are they are never getting satisfied. कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं उनको चाहे पारस पत्थर भी दे दिया तो वो केवल उसको पत्थर समझेंगे. इट इज जस्ट लाइक द सेम सिस्टम. आपने कहानी सुनी कि एक बार एक पर्सन था और उसकी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी. उसने कहा क्यों नहीं यार सारे के सारे अंडे निकाल लो. एंड ही कट दैट हैन ओवर देयर एंड आफ्टर दैट ही बिकेम पुअर. सो द थिंग इज दैट एक ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन जो फ्रस्ट्रेटेड है उनको चाहे आप कुछ भी दे दीजिए, दे आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी ओवर देयर. जिसने सोच रखा है कि मुझे परेशान ही रहना, दे विल ऑलवेज रिमेन डिसप्लीज्ड ओवर देयर. If you want to get succeed in your life, always be pleased over there. हमेशा और हमेशा pleased रहिए, खुश रहिए and tension free रहिए. क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, you know, this is the law of nature. Last time I also discussed with you. This is the law of nature. Whenever you are happy, then all the positive powers of this universe come in contact with you. Whenever you are happy, then all the positive powers of this universe are coming to help you. If you are not happy, then all the negative parts will be coming over there. Concept is very clear. Concept is very clear that we always attract the same things from this universe. We always attract the same things from this universe. If we are happy, if we are pleased, then all the positive vibrations from this universe will come to us. On the other hand, if we are not happy, then all the negative vibrations from this universe will come to us. Now the question is that why and how can we be happy? I usually pay attention. I usually tell that more and more we must pay attention. We must always pay attention that we must go for meditation. If we are doing meditation, then we always keep our mind in present. We never have the worry of past. We never have the worry of future. We never have any sort of repentance or any sort of remorse related to past. We are having more presence of mind. And if we are having more presence of mind, then we are situated in present. We are never thinking about past. हमें past की जो हमारा past में हो चुका है उसकी चिंता नहीं रहती. हम जो हो चुका है हम उसके बारे में सोच कर परेशान नहीं होते. हमें फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं रहती. भगवान श्री कृष्ण also says in श्रीमद् भागवत गीता कि never worry about whatever has been happened over there in the past, let it go on. Whatever will happen in the future we will see. Always be present in present only. This is the only mantra to be pleased over there. Be present in always and always. 18 point has been done over there. If you want to write down, then please write down be pleased. Next point comes over there, the doctrine of success. The doctrine of success means the theory of success. 19th one especially I have mentioned over there. The doctrine of success, its meaning is that the theory of success. You know, success is not a thing which can be provided to anybody. Example I would like to tell you. बहुत से लोग अपने गली मोहल्ले पड़ोस में, जानकारी में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में ऐसे देखे होंगे. बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि परिवार में एक ब्रदर तो बहुत ही लाखों करोड़ों में अरबों में खेल रहा है, लेकिन एक ब्रदर जो है तो वो मजदूरी करके गुजारा कर रहा है. कैन टू सी फैमिली सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ द ब्रदर्स वाज सेम. फैमिली सर्कमस्टांसेस दोनों के दोनों भाइयों की सेम थी, लेकिन एक पर्सन लाखों करोड़ों में अरबों में कैसे पहुंचकर एक पर्सन मजदूरी कैसे कर रहा है. अब कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि ये एक किस्मत का खेल है, ये किस्मत है, बट ऑलवेज बिलीव मी, ये किस्मत नहीं है. फैमिली एनवायरनमेंट दोनों को सेम दिया गया. दोनों को फैमिली एनवायरनमेंट सेम दिया गया और फैमिली एनवायरनमेंट सेम देने के बावजूद भी एक पर्सन ने तो उन सभी के सभी नेगेटिव सिचुएशंस को जो उस परिवार में पहले थी, एक पर्सन ने उन सभी के सभी नेगेटिव सिचुएशंस को जो उस परिवार में पहले थी उसको पॉजिटिव वे में लिया
और 1% उसको नेगेटिव वे में दिया। मैं एक एग्जांपल बड़ा कॉमन दिया करता हूँ। एक बार एक पर्सन था, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, जैसा कि पुरानी कुछ फिल्मों में देखा करते हैं। वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसका दूसरा भाई वो चोर बन गया, और ऐसा भी टाइम आया आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन गया और दूसरा भाई चोर बन गया। जब उस भाई को दूसरे भाई के सामने लाया गया, एसपी साहब के सामने लाया गया, उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता भैया कि हमारी फैमिली पोजीशन क्या थी। नाउ अगेन द सेम कंसेप्ट कम्स ओवर देयर। प्रॉब्लम्स आइदर कैन डिस्ट्रॉय यू, या तो प्रॉब्लम्स आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी, या तो प्रॉब्लम्स आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी। आइदर प्रॉब्लम्स कैन मेक यू और ब्रेक यू। आइदर प्रॉब्लम्स कैन मेक यू और ब्रेक यू, या तो प्रॉब्लम्स आपको मेक कर देंगी यानी कुछ बना देंगी, या फिर आपको ब्रेक कर देंगी, यू विल शैटर्ड इनटू 1000 पीसेस। आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करोगे और आप ब्रेक हो जाओगे। वही परिवार का व्यक्ति एसपी बन गया और वही परिवार का व्यक्ति उसका सगा भाई जो है चोर बन गया और उसको एसपी साहब के सामने लाया जाता है। Theory of success says over there, we always attract the same thing। हम हमेशा और हमेशा सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। टुडे इस सक्सेस के इस पॉइंट को समझिए। ये पॉइंट जो है ब्रह्मांडीय पॉइंट है। ब्रह्मांडीय पॉइंट क्या है? हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हमारे आसपास वही वैसा घटित होना है। इसका मीनिंग समझिए। अगर आज आप फॉर एग्जांपल एनी अदर पर्सन राइट नाउ ड्यू टू गूगल ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन आप हमेशा देखिए अगर आप नाइस नेचर्ड पर्सन है तो आपकी दोस्ती नाइस नेचर्ड लोगों के साथ ही होगी। अगर आप सक्सेस माइंडेड हैं तो आपकी दोस्ती सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ ही होगी। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, आप अपने जगाधरी जैसे छोटे शहर में बैठकर सोचिए, आप जगाधरी जैसे छोटे शहर में बैठकर सोचिए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। जस्ट सोचिए, आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग अपने आप आने लग जाएंगे, अपने आप प्रवृत्ति आपके आसपास उन लोगों को भेज देगी जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही कहीं से। आप चाह रहे हैं कि मैं 10th के बाद क्या करूं, आप चाह रहे हैं प्लस 2 के बाद क्या करूं, और हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो कि आपको बता दे कि 10th के बाद ये किया जा सकता है, प्लस 2 के बाद ये किया जा सकता है। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। आप जैसे हैं आपको वैसे लोग मिलेंगे। आप जो चाहते हैं आप जो करते हैं, जिस तरह के आपके कर्म है, जिस तरह की आपकी थिंकिंग है, आप उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह के लोग आपके आसपास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। The doctrine of success says कि सक्सेस के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, we have to follow those rules। हमें केवल उन रूल्स को डिस्कस करना है, हमें केवल उन रूल्स को अपने माइंड में रखना है, और इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। डॉक्ट्राइन का मतलब है कंडक्ट, एक सिस्टम है सक्सेस का एक। अगर ये सक्सेस का फार्मूला हमारे स्टूडेंट्स को 6ठी 7वीं 8वीं में स्कूलों में पढ़ा दिया जाए तो आई एम श्योर कि इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अगर ये फार्मूला सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाए 6ठी 7वीं 8वीं में एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। सक्सेस के ऊपर इस दुनिया में हजारों लाखों किताबें लिखी गई हैं। सक्सेस के अंदर हमारे अलग अलग पॉइंट्स आए करते हैं। वी हैव टू फॉलो दिस ऑल रूल्स, और अगर हम इन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस ओवर देयर। 19th पॉइंट वाज देयर, द डॉक्ट्राइन ऑफ सक्सेस, द डॉक्ट्राइन ऑफ सक्सेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स ओवर देयर, प्लीज राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स इन देयर कॉपीज। चेंज योर मेंटल स्टेट, वंडरफुल पॉइंट, चेंज योर मेंटल स्टेट। ये पॉइंट कितना खतरनाक पॉइंट है, मैं इसको बोल नहीं सकता। कंडीशनिंग ऑफ माइंड का मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, शायद मैंने आपको पहले भी दिया हो, इस लेक्चर में दिया होगा या इससे पहले किसी लेक्चर में दिया होगा। चेंज योर मेंटल स्टेट का मतलब क्या है? हमारे माइंड की जो स्थिति है, हमारा मेंटल स्टेट जो है, वी हैव टू चेंज दैट। हमें उस मेंटल स्टेट को चेंज करना है। हमारा मेंटल स्टेट क्या है? वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। राइट डाउन द 20th नंबर पॉइंट, चेंज योर मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट हमारा ये हुआ करता है कि मेंटल स्टेट हमारा ये हुआ करता है कि हम जो चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेंटल स्टेट, हालांकि प्रकृति की तरफ से जो दिया गया मेंटल स्टेट है वो ये है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस एक्चुअली, अब भी था अब भी है। आपने अगर अपने परिवार में देखा कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अगर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी तो ऑलवेज रिमेंबर हमारे माइंड में किसी भी चीज को लेने से रिलेटेड, परचेज करने से रिलेटेड एक हर समय डर का भाव रहेगा। चीज खराब ना निकल जाए, चीज खराब ना निकल जाए, चीज खराब ना निकल जाए। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं चीज खराब ना निकल जाए तो व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम ये सोच रहे हैं कि चीज खराब ना निकल जाए, हम ओनली एंड ओनली अपनी उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ब्रह्मांड में फैली हुई है।
डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पॉजिटिविटी चाहते हैं या नेगेटिविटी चाहते हैं। हमारे माइंड के अंदर कुछ फाइल्स जो हैं पहले से रखी जा चुकी हैं। ये फाइल्स आज नहीं रखी गई, ये फाइल्स आज से बहुत टाइम पहले रखी जा चुकी हैं। और इन फाइल्स का सबसे बड़ा क्या रीज़न रहा, हमारे माइंड में जो हमें फाइल्स दी गई वो सारी की सारी फाइल्स जो है ना, उन्होंने हमारे माइंड की कंडीशनिंग कर दी। और कंडीशनिंग हो जाने के बाद व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, कंडीशनिंग हो जाने के बाद क्या हो रहा है, कंडीशनिंग हो जाने के बाद इट इज हैपनिंग दैट, कंडीशनिंग हो जाने के बाद इट इज हैपनिंग दैट कि हम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। एक इंग्लिश में एक कोटेशन है स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। इंग्लिश में कोटेशन है स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, गॉड विल सेंड। इट्स मीनिंग इज दैट अगर हम खर्चा करेंगे तो भगवान हमारे पास और भेज देगा। इसका हिंदी में मीनिंग है शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। यू कैन रीड इन पैशन इंग्लिश बुक ऑल्सो। जरा इसको ध्यान से सुनना। एक छोटा सा मकोड़ा टाइप हुआ करता है ब्लैक कलर का, आपको याद होगा, अपने हमारे घरों में भी आता है, चीनी वगैरह के आसपास आता है। और आमतौर पे कई ऐसे मंदिर जहाँ पर चीनी वगैरह चढ़ाई जाती है पीपल के पेड़ पर या केले के पेड़ पर, तो वहाँ पर आप आमतौर पर ब्लैक से मकोड़े मिल जाते हैं। हमारे घरों में भी हुआ करते हैं, देखे होते हैं क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे, वेरी गुड। तो ये जो मकोड़ा हुआ करता है ना, तो मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पैटर्न इनके बारे में कहते सुना। मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग धारणाएं इन मकोड़ों के बारे में सुनी। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मकोड़ा हमारे घर में आता है तो 100 रुपए का नोट लेकर आता है। मुझे ये बात बड़ी हैरानी लगी जब मैंने सुना एक मकोड़ा हमारे घर में अगर आता है तो 100 रुपए का नोट लेकर आता है। तो ये बात मुझे अब नहीं, मेरे पास जब मेरे फादर टाइपिंग टीच किया करते थे तो एक लड़की आती थी पढ़ने के, मैं तो बहुत छोटा था, मतलब हमसे बहुत बड़ी थी। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 7th और 8th क्लास एंड शी वाज स्टडीइंग इन कॉलेज। शी वाज फ्रॉम महाराजा कॉलेज। आई स्टिल रिमेंबर नेम ऑफ दैट गर्ल वाज शिवानी। शिवानी था उस लड़की का नाम। बहुत बड़ी थी हमसे, स्टूडेंट थी मेरे पापा की। तो हमारी दुकान पर एक मकोड़ा दिखाई दे गया। वो बोली एकदम से, कहती मेरे डैडी को, सर आपके पास तो 100 रुपए आएंगे, आपके पास 100 रुपए आएंगे। उस टाइम टाइपिंग फीस 40 रुपए हुआ करती थी। और ऑल ऑफ अ सडन 100 नहीं है 120 आए। 3 बच्चों ने उसी टाइम एडमिशन ले लिया और 40 14 to 3 120 रुपीज आ गए। मैंने कहा यार मकोड़ा आने से 100 रुपए आते हैं। तो ये हमारे माइंड में कुछ कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो जाएगा कि इट हैपेंस ओवर देयर। तो लेकिन प्रकृति ने क्या नियम बनाया, एक रूल बना, शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। ये हिंदी में एक सेंटेंस बना हुआ है, शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। इसको मकोड़े को शक्कर खोर बोलते हैं। ये हमेशा शक्कर खाता है। अब तो चीनी आने लगी, शक्कर को चीनी ने रिप्लेस कर दिया। तो शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। मींस आपको जो चाहिए आपको वो दिया जाएगा। वट एवर यू वांट दैट विल बी गिवन टू यू। आप जो चाहते हैं आपको वो दिया जाएगा। कंडीशनली आपको चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वट एवर यू वांट दैट विल बी गिवन टू यू। कंडीशनली यू वांट एक्चुअली, आप एक्चुअलिटी में वो चाहते हैं आपको दिया जाएगा। इसका इंग्लिश में जो रूपांतरण जो है फॉर्मल्स की तरफ से जो इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया दैट इज स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। आप खर्चा कीजिए आपके पास और भेज दिया जाएगा। आप खर्चा कीजिए आपके पास और भेज दिया जाएगा। पर जो आपने देखा कि इस पेज पर अभी पेज हमने जस्ट ग्रोइंग पोजीशन पर है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आप इस पेज को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।